Thank you very much, everybody. Good morning. First of all, we have lost certain few personalities. So I welcome you all with a heavy heart. See, last night, the legendary mother of our Prime Minister, she has expired complete. And there is another personality who left us. Yes, carry on. The legendary football star Pele, he has left us, and our guiding star, the comrade Sham Sundar, and his missus Prem Goswami, they left for their heavenly abode. We bow our heads in homage to them. I request you all to observe 1 minute silence. Sorry. Thank you. I request all of you to mute your mics, and only the speaker should unmute the mic while speaking. All others are requested to mute their mic. Only the host, Mr. TV Surya Prakash, will keep his mic unmute. All others are requested to mute their mics. So, after homage to the departed souls, I take up the agenda for today's meeting. The first item is confirmation of the minutes of the last managing committee meeting on 12/11. I had earlier circulated the minutes to all of you. If anybody has got anything to say or suggest any amendment, kindly speak. So, can I consider the minutes to be confirmed? Yes, sir. Confirm. And all of you permit me to confirm the minutes? Yes, sir. Okay. Then I have to point out one thing. In this meeting, a decision was taken that every managing committee member will contribute rupees 1,000 each with effect from November itself till the financial crisis which BPS is facing is over. So we have received the donations from 23 members out of 39. 20 out of 39 members, we have received donations from 23, out of which 12 members have contributed for 2 months, November as well as December, and 11 members have donated only for December. So total collection is 35,000 rupees. I thank you all for this and request you to follow the decision of the MC till such time we are out of this financial crisis. Hopefully by 31st of March or so, we will be able to make good the loss.
So, now, the second item on the agenda is self-introduction of the new members of the managing committee. I request Mr. Khare and Mr. Munilal ji to introduce themselves. Mr. Khare, Mr. Khare, you have to unmute. Please unmute your mic. Sir, you have to unmute your mic, sir. Mr. Khare, Mr. Khare, unmute your mic. Mr. Khare, you have to unmute your mic and speak. Mr. Khare, you want, please unmute your mic. Mr. Khare. Anyway, हेलो. Yes, sir. म्यूट कर दो. let Mr. Munilal introduce himself. सर मैं मुनीलाल प्रताप और मैं यानी रेलवे गोरखपुर से सीनियर एफए के पोस्ट से मैं सेवानिवृत्त जुलाई 2020 में हुआ हूं और वर्तमान में मैं पवत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के होता हूं और हमारे यानी रेलवे पे पवत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन बहुत सक्सेसफुली पेंशन एसोसिएशन की बातों को रखने का काम कर रहे हैं. धन्यवाद. Thank you very much and welcome to DPS Force. सर जी, माई सेल्फ DC खरे. Yeah. हेलो. हाँ जी, बोलिए खरे साहब. हाँ सर जी, माई सेल्फ DC खरे फ्रॉम यानी रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ. और हम लोग पूरे यानी रेलवे को ही नहीं कि पूरे रेलवे में भी के जितने रिटायर्ड लोग हैं हमारे मेंबर हैं और उनकी ग्रीवेंसेस उनके रेलवे से हम लोग करते हैं. हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं, लोगों को उम्मीद कार्ड बनवाए और बहुत से काम जो भी काम होते हैं वो करते हैं. मेरा एक सजेशन था आइटम नंबर 1 के बारे में. आपने जो 1000 रुपए सबके लिए कंपलसरी किया है, बजाय इसके होना ये चाहिए कि सबको कंपलसरी कीजिए कि लोग 8-8, 10-10 मेंबर बनाएं. और 10-10 मेंबर जो नहीं बना पाता है, या आपको जितना कंट्रीब्यूशन है उतना पैसा अगर मेंबरशिप से नहीं कर पाता है तब वो अपने जेब से जमा करे. अगर वो जमा मैंने 6 मेंबर अभी बनवाए हैं आपके यहाँ. मैंने इस महीने में 6 नंबर तो सबके लिए नहीं होना चाहिए. जो लोग नहीं कर सकते हैं वो अपने जेब से दें और या तो मेंबर बनवाएं. मेरा देखिए, जो परमानेंट सोल्यूशन तो यही है कि हमारी मेंबरशिप और अफिलिएशन बढ़े. और वो जब भी बढ़ सकती है जब हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर कोशिश करेगा. जी, राइट. हाँ, आई एग्री. क्योंकि अभी तक की पोजीशन ये है कि मोस्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स are dormant. I request all of you to make efforts to increase the membership of BPS, affiliation and membership both. See, individual members are for the magazine. See, if the membership increase, then cost of the magazine comes down. At once upon a time, the membership for the magazine was nearing 5,000 rupees. That time magazine was costing us very less. Now since
it has come down to 1200. The cost of magazine has gone up very much. It is costing us about 26 rupees for one copy. So the alternative is to increase the membership, individual membership, as well as the affiliation. So I request all of you to make efforts and help us. Now, second suggestion is that बिल्कुल सामने बैठा हूँ, दरवाजा भीड़ के जाया करो. so far we have been supplying the magazine free of cost. Now, looking to the current financial situation, I suggest that cost of the magazine should be additional. I propose that in case of affiliates, it should be 600 rupees is the affiliation fee. The cost of magazine should be 400 rupees for them. And in this 400, I propose that we will be sending the magazine by registered book post or the speed post, whichever is less, without charging anything extra. बेटा जूस बना दो मेरा. So if you agree to the proposal, then we can implement it. सर जी इसमें एक और सजेशन है कि बजाय इसके कि 600 और 400 अलग अलग रखें, आप 600 वाली को 1000 कर दीजिए कि 1000 No, see, देखिए अभी तक हमारा और हम 350 वाले को आप 600 कर दीजिए. नहीं 350 वाले को मेरा सजेशन है 400 करने का, क्योंकि एकदम अगर हम 600 कीजिए. देखिए अगर विद मैगजीन नहीं देखिए विद मैगजीन अरे 300 सर 350 कौन सा है? 375 जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल. हाँ जी कपूर साहब, इंडिविजुअल की बात हो रही है. हाँ तो वो 375 है ना एक साल का. हाँ हाँ जी, 375 है. तो मेरा 400 को 600 या 700 कर दीजिए. नहीं 600 700 अगर एकदम करेंगे तो मेंबरशिप डाउन चली जाएगी. सर जी डरने की जरूरत नहीं है. आपके जितने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं, 1200 देंगे. Our magazine contains lot of information and we are publishing the information even ahead of Swami News. We are the first to publish the information pertaining to the pensioners. It is correct that it is quite popular, but there is a problem with the post office. Our 10 to 15% magazines are being lost in transit. And this is not only with us, this is happening with everybody, every other organization which is publishing a magazine. The 10 to 15% magazines get missed during the transit, and then our subscribers get angry. We are supplying the duplicate copies also on request, but 50% of the duplicate copies also are not reaching. That is why we have been advising our members to opt for registered post. Registered book post or the speed post. Speed post is cheaper in Delhi NCR, and for other places registered book post will be more viable. Now the cost of registered book post comes to 340 for the year, and for speed post in Delhi NCR it comes to 240 per year. So instead of increasing the cost of magazine to 700 rupees, which will not be acceptable to most of the members, it will be better if we make it less than that. I propose 400 rupees plus the postage. The individual membership 400 rupees per year
plus the cost plus the postage for the magazine. And for the affiliates, the fee is to be 1,000 rupees inclusive of the magazine. In that 1,000 rupees, we will be sending magazine by registered book post to all. If there is any other suggestion, kindly come. मैं सर आपका सजेशन तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है ये अभी भी कम है। आपका 30 रुपए देखिए, लग जाता है। एकदम बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। Let us go step by step. ठीक है, देख लीजिए। Mehdi Sahab, in case we increase the price, we will lose the membership. The members who are at present taking this magazine regularly, they have some doubts regarding the price already. But I will suggest that in the last meeting, when we have decided to contribute rupees 1,000 per month for every member, that is fine. Why should we increase the price of the magazine? That will decrease the membership. See, the story of this 1,000, I may tell you, one of our senior office bearer, C.S. Rayalu resigned on this issue. Though he had accepted it in the managing committee, he had not raised any objection when it was being passed. But subsequently, he refused to subscribe. Not only that, he resigned. So, मैं सेक्रेटरी जनरल के विचार से सहमत हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए। रोज बढ़ाने से भी डेली इंक्रीज करने से ज्यादा तकलीफ होगी। जो बढ़ाना है वो एक बार individually. And we I will again contact Mr. Rayalu individually and talk on this subject in detail. Let us decide once for all what we want to do. We need finance. I will the only request. criteria is we need finance to continue publishing this magazine and continue the supply to the members all over. This is the idea. So for this we need finance, and that we are collecting. We are already decided to collect 1,000 rupees per member. We should donate it gracefully. I think there should not be any hitch in giving 1,000 rupees per month. If all of you agree, I have got no objection. This is my suggestion, sir. This is you to decide what is No, to be done. all of you have to decide. This is the suggestion of Mr. R.K. Nanda. Just a minute, Nandaji, just a minute. You have heard the suggestion of Mr. Nanda. Any objection? Okay, sir. This is acceptable to all? Yes, it's acceptable to me also. Okay. Then we continue with this 1,000 rupees per month from our managing committee members. See, we have got 39, and today one more member will join. So there will be 40 persons. If everybody contributes 1,000 rupees, then the problem is over. Yeah, that is fine, sir. Instead of increasing the price, that is not fine. Because I feel this practical problem for making and pacify the person to become member and getting the magazine regularly. We have to tell them the price first. We can't cut down. See, we can't go in loss. The magazine cost of the magazine right, at present. I agree. See, cost of the magazine at present, it is costing then we are us. compensating it, no? No. By donating rupees 1,000. Oh, see, this is not the only, Mr. Nanda, this is not the only expenditure. We have got the staff also to be paid. Then other expenditures are also there: building maintenance, maintenance of the equipment, that telephone, electricity, and property tax, and all those things are there. The website also is there. See, our average monthly expenditure after imposing all the cuts
still it is 70,000 rupees per month. Previously, we were getting donations to the tune of 7 lakh to 8 lakh per year, which came down to almost, it had come down before November, it had come down only to 1 lakh. Then it picked up, and we are thankful to our members and our well-wishers that up to December, now we have received donations for rupees 4 lakhs. So hopefully with this additional donation by the members, 1,000 per month, by 31st of March, we'll break even. But for the next year also, then either the members should work, inspire people to donate generously to PPS, or they go on compensating by themselves. But the permanent solution will be to increase the membership, which each member of the managing committee should make efforts to increase the individual membership as well as the affiliates. Previously, we were having about 450 affiliates. After Corona, it has come down to 221. So we have to bring back those who have not renewed their affiliation. There are several regions. A large number of associations had pulled down their shutters for want of workers or donations or whatever may be the reason. So in the current situation, unless we all of us work together, the situation will not improve. The permanent solution is to increase the membership and the affiliation. So as you decide, so kindly help us, and I request all of you to promote BPS by inspiring people to join it in large numbers. Is it okay? Can I move to the next item? Okay, sir, move ahead. Anji? Okay. So next is review, post AGM review. See, we are thankful to the National Pensioners, Railway Pensioners Association Nagpur. They conducted the AGM in a very good manner and everything went on well, and they maintained a high standard. We are thankful to them. There have been no complaints. The people have appreciated. We could give time to all those who wanted to speak. Now, so far, normally we used to receive offers for the next AGM in the AGM itself. Now, this year, up till now, nobody has offered to host the AGM, next AGM. I again request Sri Mistri, Sri Khare, Sri Munilal ji to consider if any of them will be able to host the next AGM. So, any suggestions? Something wrong. I have lost the connection. I have lost the connection to the meeting. Sorry.
I lost the connection. Something wrong. Hello. Hello. Sorry, I lost the connection for some time. So, Haji Khare ji, do you want to say something? हाँ सर जी, हम लोग बात कर रहे हैं अपने यहाँ। हमारा ख्याल है कि मैं इस महीने में कंफर्म कर दूंगा कि मैं किस पोजीशन में हूँ, कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे और लोगों का भी कोऑपरेशन थोड़ा जरूर चाहिए एजीएम करने के लिए। हाँ देखिए, जितना कॉपरेशन, अभी मुनीलाल जी यहीं बैठे हैं आपके एरिया से। मैंने उनसे मांगा था, इनके प्रेसिडेंट साहब से, अमित जी से बात किया था, लेकिन मुझे कोई बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई उनका नहीं मिला। वो तो हमारा बजट पूछने लगे। हमने कहा मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पास नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, मैं पॉजिटिव ही सोच के करता हूँ कि जो मुझे करना है वो कर ही लूंगा। लेकिन थोड़ा सबका मिलजुल के अगर करेंगे, मैं और लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से, तो इस इस महीने में मैं बाई जनवरी में कुछ, मुझे उम्मीद है पॉजिटिवली मैं कर ले जाऊंगा। मैं जनवरी के लास्ट में कंफर्म करूंगा इसका। लोग तो बस खाली एसोसिएशन बना करके बैठे हुए हैं, मैगजीन नहीं ले पा रहे हैं, मैगजीन मेंबरशिप नहीं भेज पा रहे हैं, और कुछ काम तो करना चाहिए ना। ये थोड़ी संख्या, एनीवे मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जनवरी के लास्ट तक आपको बताता हूँ। धनजेवर जी ने ज्वाइन किया क्या? जी सर। हाँ, आप कुछ सजेस्ट कर रहे थे। हाँ सर। हाँ बताइए। मेरा आवाज आ रहा है सर? Yes, yes. हाँ सर, बोलिए बोलिए। सर मेरा सजेशन ये था कि जो हमारा बीपीएस का जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जी, उससे निकलने के लिए हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप उठाने चाहिए। कॉन्क्रीट स्टेप में ये है सर कि हमारे जितने मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, जैसे खरे साहब ने कहा कि उन्होंने मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, मेंबरशिप प्लस हमारे एफिलिएट बढ़ाने के लिए। वो बढ़ाने के लिए जब तक हम सर सभी लोग व्यक्तिगत टारगेट नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा। 10 या 15 से कुछ नहीं हो पाएगा। हर एक की एसोसिएशनें हैं जिनसे लोग जुड़े हैं और उनके पास उनके मेंबरशिप है। आपने मुझे बताया था किसी के पास में 80,000 तक मेंबरशिप है। अब 80,000 में जो हमारा उनकी, हमारी तो 2,000 है, बट हम लोग अगर व्यक्तिगत रूप से अगर 100 का भी अगर टारगेट लेते हैं तो हमारी जो मैगजीन की मेंबरशिप जो है, जो आपने कहा था कि 5,000 तक जाना चाहिए ताकि हमारी पर मैगजीन की जो कॉस्ट है वो कम हो सके सर। तो इसमें हमारे लोगों ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा कि हमारे कांटेक्ट के जितने लोग हैं संपर्क में के, तो आज की हालत ऐसी नहीं है सर कि कोई 400 रुपए नहीं खर्चा कर सकता है, बशर्ते कि वो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना जान ले, रेलवे वाला या किसी भी डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैगजीन से जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है सर वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने अगर 100 का भी टारगेट अगर रखते हैं सर व्यक्तिगत रूप से अचीव करने के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी मेंबरशिप 5,000 तक जाने में कोई दिक्कत होगी, ताकि हमारी मैगजीन जो है वो 10 से 12 रुपए में आ जाएगी। राइट। लेकिन सर हमको एक टारगेट ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेलवे के मोर्चे में होता था कि हमको बताया जाता था कि आप 200 आदमी लेके आएंगे भाई, तो आपको लाना है कैसा भी करके। अब कैसे ढोके लाना है वो आपकी जवाबदारी है। 1,000 रुपए हम लोग जो दे रहे हैं वो तो ठीक है सर, क्योंकि 1,000 रुपए भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट जो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि वो दे नहीं पाएंगे, तो ठीक है सर, उसमें हम कंपलसरी नहीं करेंगे, लेकिन देना चाहिए ये मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग बीपीएस से जुड़े हैं और बीपीएस है इसलिए हम लोग हैं सर, अदरवाइज हमको कोई जानता भी नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे। अपने अपने क्षेत्र में हम लोग अपना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं जून पे जो दिख रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, इट इज ओनली ड्यू टू बीपीएस। तो सर 1,000 रुपए हमको देना ही चाहिए, प्लस हमको मेंबरशिप बनाने के लिए और एफिलिएट के लिए कोशिश करनी चाहिए। 100 का टारगेट सबने लेना चाहिए सर, ये मुझे लगता है सर।
नहीं, ताकि बात तो हमारी सही जो है। पोजीशन है वो हम्म। स्ट्रांग पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि फाइनेंशियल जरूरी। पोजीशन नहीं रहेगी और इतना बड़ा नाम रहेगा तो कोई फायदा नहीं सर उसमें। वो मेरा सजेशन उसमें था सर कि हमको सभी ने टारगेट लेना चाहिए सर अपने ऊपर में, हम कितना कर पाएंगे। हमारे संपर्क के जो लोग हैं, जैसे मेरे परिचित 25 लोग तो यही हैं, अभी मैं देख रहा हूँ जिसमें हम लोग आए हैं, तो मैंने सबसे कहा, बोले हाँ भैया हम लोग बिल्कुल देंगे, क्या दिक्कत है, क्या हमको मैगजीन मिलेगी ना। मैंने बिल्कुल मिलेगी। तो मैगजीन अगर हम दे रहे हैं तो सर वो 400 रुपए की वैल्यू नहीं है, 25 रुपए महीने की या 30 रुपए महीने की। तो मुझे लगता है सर कि सभी ने टारगेट लेना चाहिए सर, जितना भी हो सके, जी। और सभी ने कमिटमेंट जो है सर थोड़ा रियलिस्टिक देना चाहिए। हमारे मोर्चे में होते थे, कोई बोलता था मैं 500 आदमी लेके आऊंगा, पता लगता था 10 भी नहीं ला पाए भाई साहब। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक सही टारगेट बात। अगर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे सर। और बीपीएस को एक मजबूत बनाना है तो सर ये मैगजीन प्लस डोनेशंस, पर डोनेशन में उतना ज्यादा ये नहीं है सर, उसको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना होगा सर। और उसके साथ में मैगजीन और एफिलिएट को बढ़ाना, मैंने आपसे बोला भी सर एफिलिएट को बढ़ाना मैंने 10-15 बढ़ा लिए। प्लस सर हमारे जो पुराने एफिलिएट्स है जो रिन्यूअल नहीं हो पाए सर, मैंने खरे साहब से या गुप्ता साहब से शेयर भी किया था वो लिस्ट को। तो सभी जोन के अंदर जितने पेंडिंग है सर अभी हमारे पास में, जैसा हमारे वेस्टर्न जोन में करीब 52 लोग पेंडिंग थे, तो मैंने पूरे 50 लोगों से कांटेक्ट किया, हर एक को समझाया कि भाई आप रिन्यूअल क्यों नहीं कर रहे हो। तो अपनी अपनी समस्याएं थी, लेकिन मैंने पूरे 52 लोगों से कांटेक्ट किया है। तो हर एक जोन के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली आपके वीपीज, मोर पर्टिकुलरली वीपी ऑफ ईस्टर्न जोन, तो सर इन लोगों ने उनसे संपर्क तो करना चाहिए सर, और वो संपर्क करेंगे तो आधे लोग तो कांटेक्ट में आएंगे हमारे एफिलिएट्स, तो उनके हमको 600 रुपए पर हेड मिलेंगे, क्योंकि मेंबरशिप में तो सिर्फ 350 ही मिलेंगे, एफिलिएट में हमको 600 मिलेंगे सर। 600 में से हमारा 300 तो हमारी सेविंग रहेगी सर कम से कम। नहीं, तो ये 300 की सेविंग नहीं रहती है लोगों 600 में। अब जी सर। 600 में हम मैगजीन फ्री देते हैं। वह हाँ सर, तो मेरा सजेशन ये है कि मैगजीन का पैसा हम अलग से लें। लेना चाहिए सर। आज के तारीख में सर 600 रुपए कोई वैल्यू नहीं है सर, 1000 रुपए से कम होना तो नहीं चाहिए सर जी एफिलिएशन फीस हाँ, सर। जी, तो मैं आपको एक तो बार बीच में डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। ये फीस हमारी रिवाइज इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हम मैगजीन का पैसा अलग से लेंगे और मेंबरशिप अलग लेंगे। आप उसको 1000 को 1500 कर दीजिए, लेकिन विथ मैगजीन एंड विथ रजिस्ट्रेशन फीस करके और इस तरह रखिए। आपके पैसे बहुत कम है मेंबरशिप, 375 रुपए कोई मेंबरशिप नहीं होती है। इट शुड बी एटलीस्ट 600 या 700 होनी चाहिए, और जो आप 600 लेते हो वो 1000-1200 से कम तो नहीं होनी चाहिए, वो भी कम है। इसको आप सबसे पहले तो इसी को आप देखिए, कंसीडर कीजिए कि कितने में आपका हो पाएगा। आप अभी एक बार बढ़ाएंगे, फिर 3 महीने बाद सोचेंगे अभी भी कम है, उसको पहले से सोच के बढ़ाइए सर। और ठीक उससे है। भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी कंपल्सरी हर एमसीएम के मेंबर को, जैसा कि लंजेश्वर जी कह रहे हैं, सब 100 मेंबर बनाना चाहिए। हर एसोसिएट को 100 मेंबर बनाना चाहिए उनकी, नहीं तो उनकी संगठन को बनाना चाहिए 100 मेंबर, ये कंपल्सरी होना चाहिए। देखिए, मेरा सजेशन ये है फाइनल कि एफिलिएशन फी हम 1000 रुपया कर दें, और लेकिन मेंबर इंडिविजुअल मेंबरशिप जो है वो 400 रुपया अभी रखें। 600 से और कम मत कीजिए सर, नॉट लेस देन 600। हमने नहीं जमा नहीं करवाया नहीं है। नहीं खरे साहब, हमारा एक तजर्बा है, ये एक्सपीरियंस है हमारा बरसों का, कि एकदम अगर हम 375 से 600 करेंगे तो आज जो हमारे मैगजीन, जो 1200 मैगजीन आज हमारी जा रही है, वो भी डाउन चली जाएगी। और अगर 1000 से कम जाती है तो हमको प्रिंटिंग बंद करना पड़ेगा, इसलिए हम देख वो लीजिए रिस्क नहीं ले सकते। तो सेक्रेटरी मेरा देख लेना सजेशन सर। जी, सर मैसूरी साहब, हाँ जी, हाँ जी, सर मेरा आपको रिक्वेस्ट है, जैसे आप 600 बोल रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन फिर भी आपको कंसिडर करते हुए कम से कम 500 तो होना ही चाहिए सर, 500 से नीचे नहीं होनी चाहिए सर। कुछ नहीं होगा सर, कोई मेंबरशिप कम नहीं होगी सर, हमारे फंड्स बढ़ेंगे इतना सर। डरने की जरूरत नहीं है, हर आदमी लेगा, है बहुत अच्छी मैगजीन है। अगर सवाल ये है कि अगर आप लोग, हर आदमी ये प्रॉमिस करता है कि वो कम से कम, आप 100 की बात कर रहे हैं,
मैं ये कहता हूँ आप कम से कम आप 10 नए मेंबर ले आइए नहीं सर, individual। एक साल में 100 मेंबर का टारगेट रखना चाहिए सर। एक साल में जी। 100 मेंबर, और दैट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस रिव्यू सर। आपके इंजीनियरिंग में तो ठीक होता ही है, था। अब ये भी डिसाइड कर लीजिए कि जो नहीं ला पाया वो उसके लिए फिर क्या है वो अल्टरनेटिव। आगे देखेंगे सर, परफॉर्मेंस अपने- रिव्यू। अपने जैसे पॉकेट कई से दे लोग सर। ऐसे फर्म के डिविडेंड है, नहीं कांटेक्ट में है, ये हम लोगों को अपने सीनियर को तो कंसिडर करना ही होगा सर। बट एटलीस्ट जो एक्टिव है, जो फील्ड में है, वो तो कर सकते हैं। देखे तो सर कितना हो पाएगा। और जो चलिए। लोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेडवुड, उसके लिए फिर आप आगे आप है ना सर सोचने के लिए। देखिए एकदम डेडवुड तो हम करेंगे। ज्यादा नहीं कैरी कर पाएंगे। अभी हमारी पोजीशन बड़ी वर्कर, जहां तक लीडरशिप और वर्कर्स की पोजीशन है वो बहुत जी। खराब है। हमारे पास दुनिया भर की पोस्टें हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेक्रेटरी जनरल, उसको असिस्ट करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, जी। लेकिन वो मेरे को कहीं से कोई हेल्प नहीं है। आज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हमारे जो है चंडीगढ़ में है। आज हमारे पास सिचुएशन ये है कि बीपीएस फुली डिजिटलाइज्ड है। आप कहाँ से काम करते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी की, अगर ये लोग मीटिंग भी अटेंड नहीं करते तो फिर हम उनका क्या करें। इससे ऐसे लोगों को तो क्यों रखते हैं आप सर? मैं मैं तो यही कह रहा सजेस्ट हूँ, ये सीधे करूंगा कहता हूँ, कि ऐसे लोगों को रखते हैं। नहीं जी, मैं ये पोस्ट ही फिर बेकार है, रखनी ही काय के लिए। काय को ये हाँ, बिल्कुल सही 40 बात है, पोस्ट हटा दीजिए। काय को 40 आदमी रखने, हम राइट। कुछ पोस्टर सरेंडर कर देंगे। जो सही बात। वर्क नहीं करते उनकी पोस्टर सरेंडर करेंगे। जी। Namaste, दिल्ली में- sir. Shall I speak to a हाँ little? जी। सर सजेशन दूंगा सर। सर नमस्ते। सर मुन्नी और गुप्ता प्लीज मैं बता देना चाहता हूँ। जी। बोलिए बोलिए। Namaste. आदरणीय महामंत्री जी, मैं सेक्रेटरी जनरल के विचार से जो उन्होंने मैगजीन और मेंबरशिप के बारे में कहा है, वो वह तजुर्बे के साथ, बहुत अनुभव के साथ उन्होंने बोला है। और जो प्रैक्टिकल स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने बोला है कि जो उनके द्वारा जो प्रपोज जो मेंबरशिप है और जो मैगजीन का प्रपोज अमाउंट है, उस पे मैं अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। और जनरल सेक्रेटरी साहब के विचार में पूर्ण रूप से सहमति व्यक्त करता हूं। और सर सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो कहा है कि आप 100 नहीं 8 से 10 मेंबर अगर बनावे तब भी हम इस क्राइसिस की स्थिति से उभर सकते हैं। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल से प्रॉमिस करता हूं कि जो उन्होंने 8 और 10 की बात कही है, मैं लगभग 2 महीने के अंदर इनके टारगेट को मैं पहुंच के, उनके टारगेट से ज्यादा पहुंच के मैं उनको बताने का काम करूंगा। आप लोग को भी अगली मीटिंग में बताने का काम करूंगा। और जो हमारा यही आप लोगों से है कि जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब का जो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लेते हुए उनके विचारों से, और जो उनके मदद के लिए जो लोग बने हैं, अगर वो मदद करने में असमर्थ है तो फिर ऐसे लोगों को, ये सही बात है कि या तो मैनेजमेंट कमेटी की संख्या कम कर दिया जाए, ऐसी संख्या या ऐसे पद को हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग बीपीएस को ही आगे बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं। उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं तो फिर मतलब हम लोग को तो स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो फिर बीपीएस को इस संबंध में अपना एक कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक मिस्टर चरायलू कुछ बोलना yes. चाह रहे थे। Namaste, Please. sir. I am Ramakrishna from Chittingar was speaking. हाँ जी, Just I बोलिए। wanted to make only a small suggestion regarding the finances of BPS. My suggestion is that we can make a special issue on TRAP NPS, restore OPS, a special issue soliciting advertisements from all the people, which can enhance our financial position. And Thank you. definitely it is easy to get some advertisements in the whole of the country, because so many affiliates are there. Even if every affiliate subscribes or gives one advertisement for the special issue of BPS, Bharat Pensioner,
will be able to garner nearly minimum 5 lakhs, in my opinion, which will be kept as a corpus fund for the magazine, and soliciting articles from all the people, all important trade union people, and elite. We can make a specialist show on NPS. That is an idea, and where we can approach the business community also for advertisements to increase our financial. Idea is only to financial improvement, but it will serve the purpose of spreading the minus points, negative things about the NPS also. You can think over. If any help is required in this regard for the special issue, definitely I will come forward to do my bit. Thank you very much. You can think over. Okay. कपूर साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ थैंक्स। अच्छा देखिए, मेरा एक और सजेशन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीपीएस को सीआरएस के लिए रजिस्टर कराने के लिए। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सीआरएस के लिए हो जाता है तो हम कुछ कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करेंगे टू हेल्प अस। ऐसा है, हमारे जो 40 मेंबर्स हैं बीपीएस में, मैनेजिंग कमेटी में, हर एक का, अगर हर एक का नहीं तो कुछ लोगों का किसी न किसी माध्यम से किसी कंपनी में, छोटी बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं कनेक्शंस होंगे, और आज की तारीख में हर कंपनी को सीएसआर करने का है, उसमें कुछ ना कुछ डोनेशन उनको देना होता है। तो कोशिश उस तरीके से अगर करें हम, और अगर सीआरएस के माध्यम से हम कुछ कंपनीज का सपोर्ट ले सकेंगे तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी जो आप लोगों के सजेशंस आए हैं, मैं उससे एग्री करता हूं कि हर मेंबर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर, नए मेंबर और एफिलिएट्स बनाए। तो 50-100 का की जगह मैं सजेस्ट करता हूं कि 50 का ईयरली टारगेट रखें हर मेंबर के लिए, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के लिए, कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बढ़ा सकते हैं और एफिलिएट्स बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। इससे देखिए पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ये है कि जो हमारी सेविंग्स, पास सेविंग्स हैं, वो हम यूज नहीं, कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ब्रेक इवन करें ईयर बाय ईयर। अगर हम पास सेविंग्स हम अगर कंज्यूम करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, पैकेज पूरी खत्म हो जाएगी और हम ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। 2, 4, 5 साल के, 5 साल से ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे पास सेविंग्स। तो आई एग्री टू द सजेशंस। एंड जहाँ तक सवाल ओपीएस और एनपीएस का है, हमारा शुरू से स्टैंड ये रहा है, एनपीएस में हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कराई हैं और हमारा स्टैंड फाइनल यही है कि या तो एनपीएस में आप गारंटी दें कि लास्ट बेसिक का 50% कम से कम पेंशन होगी, अदरवाइज यू रिवर्ट बैक टू ओल्ड पेंशन। ओल्ड पेंशन का जहाँ तक सवाल है, ओल्ड पेंशन इज नॉट ए बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ये हम कई दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, पे कमीशन में भी हमने एक्सप्लेन किया था, और इट इज़ ए फैक्ट कि जो पेंशनेबल एम्प्लॉइज हैं उनके पे स्केल्स कम रखे जाते हैं इस वजह से कि बाद में उनको पेंशन देनी है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोड नहीं आता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज़ ए डेफर्ड वेज। तो वो तो हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है और रहा है। ओपीएस के लिए हम फाइट करते रहेंगे
और एनपीएस का जहाँ तक सवाल है, एनपीएस का हमारा स्टैंड यही है कि या तो आप इसमें 50% पेंशन की, लास्ट बेसिक की 50% की गारंटी दीजिए, अदरवाइज रिवर्ट बैक टू द ओल्ड पेंशन। तो और सर फाइनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स से दैट अपना जो कंट्रीब्यूशन है 1000 रुपीज का वो चालू रखते हुए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं, और हर मेंबर का, आपकी सजेशन है 100 का टारगेट रखने की, मैं कहता हूँ 50 का टारगेट से ही हम चलें। 50 का टारगेट से भी हम चलेंगे तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सर जी एक चीज और मैं कहना चाहता था। हाँ जी, हेलो, हाँ कि जी, हाँ आप जी। वन रैंक वन पेंशन पे हमारा बीपीएस, देखिए 1 रैंक 1 पेंशन हमारा इशू रहा। एक मिनट सर। हाँ जी, सुनिए मैं बता दूं पहले आपको बैकग्राउंड। ये 7th CPC में ये हमारा ही सजेशन था 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसके ऊपर 3 बार डिस्कशन हुए हमारे पे कमीशन से। पे कमीशन ने 3 बार हमको बीपीएस को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, और फाइनली जस्टिस माथुर ने ये कहा कि देखो भाई, मैं भी पेंशनर हूँ और मेरी सिंपैथीज आपके साथ है, मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से वो रिकमेंडेशन को डिल्यूट करेगी, और अल्टीमेटली वही हुआ। जो इंक्रीमेंट बेस्ड सजेशन था, रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की, उसको डिल्यूट किया गया, और वो डिल्यूशन में हमारे ही लोग पार्टिसिपेंट थे। जो सर जी पेंशनर्स हमें एसोसिएशन अपनी की लड़ाई मीटिंग को जारी कॉल की रखना थी होगा। डीओपी ने, उस डीओपी की मीटिंग में हमारे ही एसोसिएशन जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए थे, वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे पेंशनर्स के, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक है। तो वो इश्यू तो अब 1 रैंक 1 पेंशन वाला इश्यू तो पे कमीशन नेक्स्ट आए तभी हो सकता है, उससे पहले तो लेकिन हमें अपनी लड़ाई को जारी रखनी चाहिए। नहीं। और ये लड़ाई तो हमारी चालू है, लड़ाई तो हमारी डिमांड तो कभी भी बंद नहीं हुई। पुरानी पेंशन से ज्यादा लागू कराने के, उसके ज्यादा जोर हमें 1 रैंक 1 पेंशन पे देना चाहिए। वो तो हमेशा से है। 1 रैंक पेंशन तो पुरानी पेंशन में आएगा ना भाई। उसका 1 रैंक 1 पेंशन होने से आज एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को एडवांटेज होगा, एग्जिस्टिंग जी, पेंशनर्स को तो हमें एडवांटेज वही चाहिए, सेवंथ पे हमें वही कमीशन। लड़ाई करनी। देखिए हुआ है 7th पे कमीशन में एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को जो डिल्यूशन हुआ। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? किसी का माइक ऑन है ना? माइक जरा, हेलो। तो देखिए, ये 1 रैंक 1 पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की ये तो फाइट हमारी हमेशा से है और रहेगी, इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। अब नाउ कैन आई मूव टू द नेक्स्ट। अभी फाइनल ये हुआ कि एफिलिएशन फी हम 1000 करेंगे, और जो इंडिविजुअल मेंबरशिप फी अभी हम 400 रुपये ही रखेंगे। साथ में हर मेंबर एक 50 का टारगेट लेके चलेगा कि उसको 50 नए मेंबर लाने हैं, और साल भर में 50 नए मेंबर लाने हैं, और अफिलिएट्स को भी बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा अफिलिएशन लाने हैं। तो ये 2 चीजें फाइनल हैं, प्लस जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वो अपना जो डोनेशन है वो अपना पर्सनल डोनेशन 40 चालू रखते हुए बाकी एसोसिएशंस को भी इंस्पायर करेंगे डोनेशन देने के लिए। तो हमारी काफ़ी सारी एसोसिएशंस डोनेशंस देती हैं साल में, और हमारे डोनेशंस क्योंकि ATG इनकम टैक्स में
ATG का बेनिफिट हम दे सकते हैं, हमें परमिशन है। तो इंडिविजुअल्स भी हमारे पास डोनेशंस आते हैं। सवाल सिर्फ डेडिकेशन की है और वर्क की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे कपूर साहब सारी बीमारियों के बावजूद आज भी वो बिस्तर में पड़े पड़े भी हमें 50-60 हजार रुपए का डोनेशन कलेक्ट कर देते हैं। तो अगर कोशिश करें तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन यही है आप सबसे कि सारे मिलके कोशिश करिए, हमारी मदद करिए, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन 67 साल से चल रही है, आगे भी चलती रहे। दूसरा, लीडरशिप की हमारे पास बहुत कमी है। तो हम लोग एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो सब अबव 80 हैं, 82, आई एम टचिंग 85। तो हमें ये भी सोचना चाहिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के लिए भी हमें सारे मेंबर्स को मिलकर ही कोशिश करनी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट आइटम पे आता हूँ। रेजिग्नेशन ऑफ श्री वाइस प्रेसिडेंट साउथ श्री रायलू। इसके ऊपर काफी ग्रुप में डिस्कशन हो चुका है और मेजॉरिटी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की ओपिनियन ये है कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर आज कोई मेंबर इस विषय में कहना चाहे तो वेलकम है, अदरवाइज उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलिएगा। तो रायलू जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है। Steps to increase affiliated associations and individual membership, ये डिस्कस हो चुका ऑलरेडी। सभी मेंबर्स कोशिश करेंगे 50 का टारगेट लेके। फिक्सिंग एडिशनल फी फॉर मंथली न्यूज मैगजीन, ये अभी आइटम इस पे ये भी डिस्कस हो चुका और फाइनल ये है कि एफिलिएशन फी 1000 कर दी जाए और अभी इंडिविजुअल मेंबरशिप विद मैगजीन 400 प्लस पोस्टेज। पोस्टेज में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट में 4 रुपये लगते हैं हमें, 4 रुपये पर मैगजीन, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आप मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हमारे पास कंसेशनल लाइसेंस है पोस्ट ऑफिस का, उसमें हमें 4 आने पर मैगजीन देनी होती है, लेकिन 15% मैगजीन्स हमारी मिस होती हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को कन्विंस करें कि वो मैगजीन रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से मंगाएं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। Steps to increase donations, तो ये तय हो गया कि सभी मेंबर्स इंडिविजुअल डोनेशन अपनी कंटिन्यू करेंगे जहां तक पॉसिबल है। दूसरा, कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल मेंबर्स को और एफिलिएट्स को इंस्पायर करें डोनेट करने के लिए। एग्रीड? सब एग्री हैं यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये एग्रीड है। अब एक और अल्टरनेटिव है मैगजीन के लिए कि हम एडवर्टाइजमेंट्स लेने की कोशिश करें। अगर हमको एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाते हैं तो उससे काफ़ी कुछ हेल्प हमें मिल जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी हमारे सभी मेंबर्स को कोशिश करनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल से या और कहीं डीलर से। देखिए, हमारी मैगजीन ऑल ओवर द कंट्री जाती है। Sir, you fix up the price for advertisement, we can try.
हाँ जी, We fixed the rates for advertisement, we can try. हाँ देखिए हमारे assure रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। फुल पेज इनसाइड कवर Uh, 10,000 पर मंथ uh, और हाफ पेज इज 5,000 रुपीज पर मंथ। बैक लास्ट पेज जो है हमारा लास्ट कवर पेज, वो उस पे क्योंकि हम डीए की फिगर भी रखते हैं, उसकी पेज थोड़ी कम है और क्योंकि लास्ट पेज की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो लास्ट पेज भी हमारा 10,000 हमने रखा है, लेकिन उसमें साइज थोड़ा सा कम हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का। तो रेट्स ये हमने फिक्स किए हुए हैं। और हमारे पास एक हैदराबाद से एक हॉस्पिटल का साल भर का आया था एक एडवर्टाइजमेंट, 1 लाख रुपया उन्होंने दिया था। उसके बाद करंट ईयर में भी उनका 1 महीने 2 महीने का एडवर्टाइजमेंट आया था हमारे पास। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कोशिश करें तो बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो मिस्त्री जी कुछ कोशिश कर सकते हैं अहमदाबाद महीने के हम दे देंगे, चलो कभी भी बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, ये महीने में आई विल सेंड द मैटर फॉर 10,000 इनसाइड कवर फुल पेज। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इसी तरीके से अगर हम एडवर्टाइजमेंट नागपुर से भी मिल सकते हैं हमें, लांजेवार जी बहुत एक्टिव है हमारे, और अगर वो कोशिश करें तो कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें मैगजीन के लिए वहां से भी मिल सकते हैं। आपका क्या कहना है लांजेवार? कोशिश करते हैं सर। हाँ, कोशिश से ही होगा काम, जब कोशिश करें थोड़ा सा उसमें नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है सर, हाँ, कोई हमें एडवर्टाइजमेंट देगा तो क्यों देगा, पहला ये होना चाहिए ना सब। उसमें फोकस होता है, जो भी एड देता है या जो भी सीएसआर में पैसा देता है वो उसके रिटर्न चाहता है। अब रिटर्न में हमारी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन है 1200-1500 की जी। अब ऑल इंडिया में वो 1200-1500 मैगजीन जा रही है, और अगर नागपुर में वो मैगजीन अगर 10 लोगों के पास है तो कोई उसमें स्पेंड क्यों करेगा? तो पढ़ाना पड़ेगा ना मैगजीन के सर, ये। वही मैं बोल रहा हूँ सर, जब तक हमारी मैगजीन 5,000 तक नहीं जाएगी सर, जब तक हमारी मैगजीन, ताकि उनको भी तो फोकस चाहिए ना सर, कि जो इन्वेस्ट करता है हाँ, तो ये बढ़ाना पड़ेगा ना, ये आप लोग कोशिश करेंगे तभी होगा ना। they are all businessmen sir, so they want some return. We are getting advertisement on the basis of personal contacts only, as a donation only, not as a publicity. We are getting advertisement on the basis of personal contacts only and as a donation to see the face of Maheshwari ji or Chauhan sir. देखिए कोशिश करिए को पर्सनल कांटेक्ट से अगर कुछ मिल जाए, and this is a one type of donation sir, not हाँ advertisement. ठीक है, वो डोनेशन के रूप में ही आने Simply it दीजिए। is for a donation. ओके, They don't get any return na sir, so that's नहीं why वो ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन जी सर। इसका सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्राइबर मैगजीन के बढ़ाने पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वो सर उसमें हमको कोर एरिया हमारा वही होना चाहिए सर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम जो कोशिश करेंगे वो हर एक के अपने पर्सनल कांटेक्ट के ऊपर मिलेगा सर, और वो भी एज ए डोनेशन करके मिलेगा सर। वो आप एडवर्टाइजमेंट करो या मत करो, जिनके कॉन्टेक्ट है वो डोनेशन ला सकते हैं, बाकी वो एडवर्टाइज उससे तो हमको सर मेंबरशिप और एसोसिएट और एफिलिएट्स पे ज्यादा कोर एरिया है सर हमारा, जिसमें हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हमारा बिल्कुल सही है। वो 50 की जगह अगर 100 हम कर लेते हैं तो भी चलेगा सर। प्लस सर ये जो चीजें जिस स्पीड से होनी चाहिए, स्पीड थोड़ी कम हो रही सर हमारी। इंक्रीज करिए और इंक्रीज तो आप ही लोगों को करना है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, जो हमारे से यंगर लोग हैं उन्हीं को करना है, हम तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सर, और खास करके जो नए आए हैं वो मेरे जैसे। हाँ, नए आए जैसे नहीं बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। देखिए खरे साहब का हमने अभी 6 आदमी का भेजा है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो बोलते हैं ना सर, हमारे यहाँ पर हम लोग मजाक में बोलते हैं नया मुल्ला जोर से बांग देता है तो वो चलता है। खरे साहब ने ऑफर किया है कि वो दिल्ली भी आ सकते हैं हेड ऑफिस। जी बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप शुरू करिए
हम अगर आप महीने में एक बार भी आ जाएंगे तो हमें काफी, क्योंकि देखिए हमारा जी। तो हर चीज हमारी डिजिटलाइज है। मैं हमारे जनवरी अकाउंट्स से ही शुरू करता हूँ। देखिए हमारे अकाउंट्स भी डिजिटलाइज्ड है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी मेंबरशिप डेली बेसिस पे अपडेट होती है, वो ऑटोमेटिक अपडेशन है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर किसी का सब्सक्रिप्शन आज खत्म हो गया तो वो उसका नाम मेलिंग लिस्ट से आज ही डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर जैसे ही हम खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है। तो हमारी मेंबरशिप जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है सबके लिए। मेंबरशिप हर डेली बेसिस पे अपडेट होती है। हमारे अकाउंट्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है और हर चीज डिजिटलाइज्ड है। दो कुछ फाइल्स अगर भी बची है तो वो भी हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उनका भी। तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस दिल्ली में ही आना है। दिल्ली में ऑफिस में काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑफिस आए बिना नहीं पूरे हो सकते। जैसे वेंडर्स का पेमेंट है, चेक्स को साइन करना है, स्टाफ का जो वर्किंग है उस पर नजर रखनी है। हालांकि वो भी हमारा ऑफिस भी विजिबल है ऑनलाइन। तो मैं हालांकि 2 साल हमने चलाया कोरोना पीरियड में, हमारे स्टाफ ने भी वर्क फ्रॉम होम किया, हम लोगों ने भी वर्क फ्रॉम किया और हमारा सारा काम अच्छे से चलता रहा क्योंकि हमने पहले ही डिजिटलाइजेशन कर लिया था। तो आप कहीं से भी हमारी मदद कर सकते काम करने में, लेकिन हेडक्वार्टर पे भी हमें 2-4 लोगों की जरूरत रहती है जो स्टाफ वर्क का डेली वर्किंग मॉनिटर कर सके। तो हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार तो अगर हो लोग तो रोटेशन एक बना सकते हैं कि जिससे हर हफ्ते कोई ना कोई वहाँ आ जाए। अभी जैसे अभी है एट प्रेजेंट कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि जो हम लोग तो नंबर में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, किस दिन टिकट तो हमारा कंफर्म्ड है। हाँ, लगेज कोई अलाउड है नहीं वहां ले जाना। तो बस ट्रेन की इंतजार है, जिस दिन आ जाएगी चल देंगे, और किस दिन आएगी ये भी नहीं मालूम है। तो इसलिए उसकी भी तैयारी रखना जरूरी है। बाकी मेरे जितने आइटम्स थे आज की मीटिंग के लिए, उसमें से एक ही आइटम बचा है कि हमारी एक एसोसिएशन है बॉम्बे में, ऑल इंडिया खादी विकास एसोसिएशन। वो उनके करीब 5,000 मेंबर हैं। तो वो चाहते हैं कि हम उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजिंग कमेटी में लें। तो हमें कोई हेडक्वार्टर लेवल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं कृष्णा कुमार गुप्ता, उनका प्रपोजल है मैनेजिंग कमेटी में उनको कॉप्ट करने के लिए। अगर आप लोग एग्री होते हैं तो उनको कॉप्ट कर बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए लीजिए, ले लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। लीजिए सर। बिल्कुल लेना ले चाहिए। लीजिए सर। मेरे आज के आइटम्स खत्म हुए। अभी कोई और किसी को आप लोगों में से कोई और कोई इश्यू रेज करना चाहे तो वेलकम। सर हाँ जी, सर मैं कुछ बोलूं क्या सर? हाँ बोलिए हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। मेरा ये कहना था सर कि हमारे जो एफिलिएट्स है जो जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है चारों जोन में सर। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो सर ये जो जोन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप कराई जाए सर कि वो लोग चेजिंग करे उसका, तो उसको सर डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए सर। देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट आपने भेजी थी, मैंने वेस्टर्न जोन का तो मैंने हाँ, कंप्लीट किया है सर। हमारी लिस्ट जोन वाइज बनी हुई है सर और बनी है। हर वाइस प्रेसिडेंट को हम वो लिस्ट नहीं ना सर, भेजते हैं। लेकिन अभी ये मीटिंग के अंदर में पब्लिकली 2-2, 3-3 लोग मिलके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दीजिए ताकि उनसे आगे हम फीडबैक ले सके सर। हाँ तो ये हर देखिए एक जोन अब ये डिपेंड्स कौन ऑफर करता है अपने आप को वॉलंटियरली।
नहीं सर, वॉलंटियर नहीं कर सकते तो फिर कैसे चलेगा सर? यानी मेंबरशिप, हमारे एफिलिएट की मेंबरशिप नहीं आ रही है, उसकी लिस्ट है 200 लोगों की, और वो 200 लोग जो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो सर किसी को तो भी थोड़ी थोड़ी तो जवाबदारी लेनी होगी ना सर, हर जोन के लोगों को। जी डेसिग्नेशन अपनी जगह पे सही है सर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में आती है ना सर। प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ रन इक्वली ना सर। चलिए, तो जो जोन है सर, वो जोन के लोगों को थोड़ा सा डेसिग्नेट कराया जाए सर, ऐसा मुझे लगता है सर मीटिंग के अंदर। जी, नॉर्थ जोन से जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं मिस्टर खरे को और ठीक है मिस्टर सर। मुनीलाल जी को। जी ठीक है सर, ठीक तो लिस्ट है हम भेज देंगे नॉर्थ जोन ठीक है। की। लिस्ट तो भेज दिया लोग सर, भी है जी, जी सर। लिस्ट है। मैंने खरे साहब को भेज दिया है सर। जी सर, हाँ। मैंने कई लोगों से बात भी किया है, भेजने को तैयार। और जी जो नॉर्थ ईस्ट की लिस्ट है वो हम जी कांजीलाल जी को, कांजीलाल है या? यस सर। हाँ जी, नॉर्थ ईस्टर्न जोन की लिस्ट हम आपको भेज देते हैं कि जो लोग ड्यू हैं, जिनका रिन्यूअल नहीं आया, तो आप और बिमलेंदु जी दोनों मिलके अगर इट विल बी बेटर सर, वाइसर जी, इट विल बी बेटर if you fix it to Bimalendu Chakraborty, because he is the biggest. हम आपको मोबाइल नंबर उनके प्रोवाइड करेंगे, पूरी लिस्ट हम आप प्रोवाइड करेंगे आपको। उनको कांटेक्ट करके आपको उनको परसुएट करना है, और उनकी क्या शिकायत है वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ईस्टर्न जोन की लिस्ट हम आपको ईस्टर्न जोन is already in the link. अब नॉर्थ ईस्ट में अभी वाइकुल मणिपुर से थे। हाँ मणिपुर है। हाँ जी, मणिपुर वाले हैं ना? हाँ मिस्टर सिंह, मणिपुर मीटिंग में थे वो, अभी चले गए क्या मिस्टर वाइकुल सिंह? यहाँ लिंक की प्रॉब्लम है सर। हाँ जी, वो थे मीटिंग में अभी। देखिए, चलिए कांजीलाल जी, एक कोहिमा में एक एसोसिएशन है हमारी बड़ी, और उनका रिन्यूअल 3 साल से ओवरड्यू है। उनके हम पर्टिकुलर्स और आपको हाँ, तो वो क्योंकि वो व्हाट्सएप में आप नंबर भेज दीजिए। हाँ हाँ, वाइकुल जी को भी भेज देता हूँ, मैं आपको भी भेज देता हूँ। हाँ, वो हमारी बड़ी में है एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन जो है उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट जो किया रजिस्ट्रेशन का, उसमें कंडीशन ही रखी है कि इट विल ऑलवेज रिमेन अफिलिएटेड टू बीजेपी बीपीएस। लेकिन वो जो है उन्होंने अभी 3 साल का उनका ओवरड्यू है, तो उनका भी नंबर मैं आपको भेज दूंगा। अब प्रॉब्लम रह गई वेस्ट की, साउथ के अभी वो सेक्रेटरी डिफेंस थे अभी। हेलो, हाँ सर, सेक्रेटरी डिफेंस थे अभी साउथ से। विशाखापट्टनम से थे। सेक्रेटरी डिफेंस शायद छोड़ गया है, अभी है नहीं। तो हम साउथ की लिस्ट, हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस है अभी
विशाखापट्टनम से। साउथ की लिस्ट हम उनको भेजेंगे, साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है सर। तो ओके, तो आई थैंक ऑल ऑफ यू for joining this meeting and Yes, sir. cooperating Thank you with very us, much. giving valuable suggestions. And I, फिर ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ जी बोलिए। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने ये सेक्रेटरी पेंशन की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जी। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सेक्रेटरी साहब जो छोटे छोटे स्टेट्स के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, दे डेलिबरेटली डोंट कॉल बीपीएस पीपल। जैसे आप बैठे थे, मैं भी बैठा था, और जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं इन सिटिंग इन बिगर सिटी, छोटे स्टेट्स में या छोटे इलाकों में रहने वाले फेस शेयर नहीं करते। अब उनका जो पॉइंट था कि जो रिटायर होते हैं गवर्नमेंट सर्विस से या और डिपार्टमेंट से, उनको आप कांटेक्ट करते हो, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि देखिए हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन हो आप फलाने डिपार्टमेंट में इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, तुम कांटेक्ट करें। देखिए आपको उस कॉन्फ्रेंस में थे और आपने वहाँ मेरा सजेशन अगर सुना हो, मैंने सेक्रेटरी को सजेशन ये दिया था कि जो डीओपी के पास कंप्लीट लिस्ट रहती है जो लोग रिटायर हो रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट ये की थी कि वो अगर लिस्ट हमें प्रोवाइड करें तो हम उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके हमारी एफिलिएटेड एसोसिएशंस थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल हैं, तो उनके रेजिडेंस के नज़दीक जो भी एसोसिएशन हमारी होगी हम उसके कांटेक्ट नंबर्स उनको दे सकते हैं और एसोसिएशन को भी उनके कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं। अभी मिनट्स आनी बाकी हैं, उनके मिनट्स आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया। 10 कैश रसीद का डिमांड किया हुआ है। कैश रसीद हम लोगों के सामने सर एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इन बिगर सिटी। हमारे यहाँ कई ऑफिस हैं जो स्कैटर्ड हैं। 110 की अगर 2-3 ऑफिस हो तो आदमी पर्सनली जाके अपने मेंबर्स को भेज के कांटेक्ट कर सकता है, पर जिस जगह पर स्कैटर्ड ऑफिस लोकेटेड हैं तो वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। जब तक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को इनिशिएटिव लेके हम लोगों को असिस्ट ना करे, हमें क्या जानकारी मिलेगी कौन से डिपार्टमेंट से कितने लोग रिटायर हो रहे हैं और कौन सी तारीख को रिटायर हो रहे हैं। हाँ, वो जानकारी रहती है ना, 6 महीने पहले आ जाती है इनके डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन के पास। ये जो भविष्य का उनका पोर्टल है उसके अपडेट करने के लिए उनके पास जानकारी आ जाती है और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो हमको प्रोवाइड करें। अभी उनका डिसीजन उसके ऊपर आना बाकी है। हाँ, प्रोवाइड भी करें और हम लोगों को इग्नोर भी ना करें। जब वो हमें बुलाते हैं अपनी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, दे शुड नॉट इग्नोर अस। छोटे-छोटे एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको बात करते हैं, कोई जम्मू से बात कर रहा है, कोई पठानकोट से बात कर रहा है, कोई कहीं से बात कर रहा है। Why they are living न्यू दिल्ली people? जो नई दिल्ली में लोकेटेड हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको समझना भी चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। नंदा जी, ये हर डिपार्टमेंट ऐसा ही करता है कि वो उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं बोलने के लिए जिनका उनको मालूम है कि ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन वहाँ कॉन्फ्रेंस में उनके यहाँ एक प्रोविजन है कि आप हाथ खड़ा करने वाला जो आइकॉन है उसको दबाएंगे तो आपका हाथ वहाँ दिखेगा। तो वो मुझे पीछे भी आपने जैसे बताया हम 4 था। लोग बीपीएस के वहाँ बैठते हैं तो उन्होंने वीके तनेजा को इनवाइट किया ये सोच के कि ये भाई नया बंदा है, ज्यादा हमको कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं दे पाएगा,
तो लेकिन हमने इमीडिएटली मैंने बोला कि भाई बीके तनेजा जी की जगह मैं आपसे बात करूंगा, तो वो ना नहीं सर, कर पाए। मैं कहता हूँ हम लोग ये चाहते हैं कि जब आप आ जाते हो और आपके साथ हम 3-4 लोग बैठे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही बोलिए, क्योंकि आपको नहीं, इसकी देखा जानकारी भी ऐसा ज्यादा है, होती सुनिए है और आपको सुनिए, लोकेशन का भी वो पता वो होता है। मेरे को नहीं बुलाएंगे, हाँ, बस यही उनको तो मालूम चक्कर है, है, यही तो मालूम है उनको कि मैं कोई ना यही तो कोई ऐसी सर मैं प्रॉब्लम। पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्यों इग्नोर करते हैं भाई, दे आर इग्नोरिंग। इनको ठीक है, जब लेकिन उसका बुलाते इलाज हो तो क्या दे है? शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अरे आल्सो। भाई, अरे सुनिए तो वो मालिक, वो ठीक है, मेरे को इग्नोर किया, लेकिन बीके तनेजा को तो वो एडिटर है हमारे, उनको तो इनवाइट किया ना। हाँ, जब उनको इनवाइट किया तो मैंने कहा भाई ठीक, तनेजा जी की जगह मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने ना तो नहीं कहा ना, मैंने बात की ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, उनके मिनट्स आने दीजिए फिर देखेंगे। क्योंकि चलिए सर मैंने तो फॉर द लास्ट 7-8 इयर्स ऑब्जर्व किया है कि हमारे बीपीएस के जो प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं या कोई और भी मेंबर्स हैं, दे कैरी इक्वल रिस्पेक्ट इन एवरी डिपार्टमेंट। तो सब उसका वेलकम भी इलाज क्या है करते वो हैं, भी तो पूरी बताइए। रिस्पेक्ट भी करते हैं, except this department of pension where I have seen the deputy secretary and the secretary, they are not caring for the BPS. That is the thing which I took it ill. That is wrong. They should क्या care for the इलाज? elderly person. भाई हम कोई छोटे बंदे थोड़ा या कल के रिटायर थोड़ा हुए हैं। Now you have crossed 85, I am crossing 88. So they should give due regard to the members who are participating in the confederations of pensioners all over India. You do not That is look my like, point, sir. you do not look like 88. That is the problem. So anyway, we will go on trying, and Sir, I retired on the 31st of January 93. Now you can we calculate know. what is my age. We know all that. We know all that. So kindly, we pray that you Okay, go on sir. helping us for 100 years. Okay. Anyway, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, Thank you, sir. और खासतौर से सूर्य प्रकाश जी का, जिन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की बहुत ही सक्सेसफुली। I hope we had a very constructive discussion and will try to adopt. Thank you, Surya Prakash ji. Thank you very much. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Pranam sir. Happy हाँ। New Year to all. Happy New Year. Happy New Year to everybody. Happy New Year. Happy Happy New Year to New everybody. Year. Happy New Year to all of us. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Namaskar. Surya Prakash ji, let us now close down.